Hello, this is Vikram Verma from New St. Stephen Public School, and today I am going to finish the chapter of economics, some basic concepts of national income. Students, today we are going to finish chapter first. Few topic of chapter first is are remaining. So in this video we are trying to cover the remaining topics of chapter first. So let's start with the first topic, concept and component of consumption expenditure. In microeconomics, consumption expenditure refers to the aggregate consumption expenditure of the economy. सो कंजप्शन एक्सपेंडिचर का क्या मतलब है यहाँ पर? कंजप्शन एक्सपेंडिचर का हमारा मतलब होता है एग्रीगेट कंजप्शन एक्सपेंडिचर, मतलब हमारी पूरी इकोनॉमी का जो कंजप्शन ऑल टुगेदर सम टोटल ऑफ ऑल द कंजप्शन एक्सपेंडिचर है हमारी पूरी इकोनॉमी का, उसको हम कंजप्शन एक्सपेंडिचर कहते हैं. अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन अराइज हो रहा होगा कि ये कंजप्शन एक्सपेंडिचर कौन करता है, मीन्स हु आर द कंज्यूमर्स इन द इकोनॉमी, है ना, कौन करता है ये कंजप्शंस. सो द कंज्यूमर इन द इकोनॉमी आर ब्रॉडली क्लासिफाइड एज द हाउसहोल्ड, द गवर्नमेंट एंड द नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशंस लाइक द NGO, टेम्पल, मॉस्क, गुरुद्वारा एंड अदर, है ना. हाउसहोल्ड, इन हाउसहोल्ड consumer buy the goods for the satisfaction of their want. The government buy consumer good for the distribution among the defense force, for midday meals, है ना, and midday meal in the school and for such other purposes. Non-profit private institution buy the consumer good for the charity, है ना. तो all together these all three consumer buy the goods for the different purposes and consumed it. So altogether there is a formula of aggregate consumption expenditure. Consumption expenditure by the household, consumption expenditure by the government, and consumption expenditure by the non-profit private institution like NGO, temple, mosque, gurdwara and other. So our next topic is investment and its component. So what is investment? Simply, चेंज इन द स्टॉक ऑफ कैपिटल इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट, या फिर एडिशन इन द कैपिटल इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट. फॉर एग्जाम्पल इन 2015 वी हैव अ कैपिटल ऑफ 5 लाख रुपीज़, है ना. एट द एंड ऑफ 2015 या इन द बिगिनिंग ऑफ 2016 वी हैव अ कैपिटल ऑफ 10 lakh rupees. It means there is a change in capital, है ना. So altogether we can say that addition in the capital is known as investment. So let's just see, as we know that capital is the important factor of production. Let me remind you what are the factor of production: land, labor, capital and entrepreneur. So capital is a factor of production. So it is a stock of the produced means of production. It is a stock of those man-made goods which are used for the further production. Capital stock implies the production capacity of a producer. Larger the capital stock with the producer, greater is the capacity to produce goods and services. जितना ज़्यादा प्रोड्यूसर के पास कैपिटल स्टॉक होगा उतनी ही ज़्यादा उसकी कैपेसिटी होगी गुड्स और सर्विस को प्रोड्यूस करने की. ठीक है, तो चेंज इन द स्टॉक ऑफ कैपिटल इज ऑल्सो कॉल्ड द कैपिटल फॉर्मेशन. वी हैव a formula over here of investment. I is equals to investment, and change in capital means K means capital stock, and change means delta means change in the capital stock during the year, है ना. So what does investment means? Change in the capital stock of capital. Change in the stock of capital is called capital formation. So investment has two components. First one is fixed investment and the other one is inventory investment. So first one is fixed investment. Fixed investment refers to increase in the stock of fixed asset of the producer during an accounting year. सो फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट का क्या मतलब होता है? फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट का मतलब है, यहाँ पर देखिए, फिक्स्ड का मतलब यहाँ पर फिक्स्ड असेट से है, और इन्वेस्टमेंट का क्या मतलब है? चेंज इन द फिक्स्ड असेट. सो किसी भी अकाउंटिंग ईयर में जितना हमारा फिक्स्ड स्टॉक और फिक्स्ड असेट्स का स्टॉक प्रोड्यूसर का
बढ़ता है उसी को हम क्या कहते हैं, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट कह सकते हैं, ठीक है। तो इंक्रीज इन द स्टॉक ऑफ फिक्स्ड असेट ऑफ द प्रोड्यूसर ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर इज कॉल्ड फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, है ना। वी हैव अ एग्जांपल. In the beginning of the year 2015, a producer have a stock of 5 machine, and at the end of 2015 he has a stock of 7 machine. Then the stock of his fixed asset increased by 2 machinery during the year 2015. है ना, तो फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट ऑफ द प्रोड्यूसर ड्यूरिंग द ईयर 2015 इज इक्वल्स टू 2 मशीन. सो फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट इज ऑल्सो कॉल्ड फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन. फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट को हम फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन भी कहते हैं, ठीक है। जितना ज़्यादा स्टॉक ऑफ कैपिटल फिक्स असेट की टर्म में बढ़ता है ना, उसी को हम फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन कहते हैं, ठीक है. नाउ लेट्स जस्ट डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट. फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट के बढ़ने का क्या फ़ायदा है, व्हाट आर द एडवांटेज, व्हाट आर द सिग्निफिकेंस. सो अगर फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट आपका इंक्रीज होता है तो इट रेज द प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ द प्रोड्यूसर. नाउ प्रोड्यूसर हैव द मोर फिक्स्ड असेट, सो the production capacity of the producer is definitely increased, है ना. by raising the production capacity of the producer, fixed investment lead to the higher level of output in the economy, है ना. तो अगर कैपेसिटी बढ़ेगी प्रोडक्शन की तो फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट की वजह से हायर लेवल ऑफ आउटपुट भी अचीव होगा इकोनॉमी, मतलब ज़्यादा प्रोडक्शन कर पाएंगे हमारी इकोनॉमी का, है ना. और हायर लेवल ऑफ आउटपुट का क्या मतलब है, हायर लेवल ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, है ना, जिसको हम क्या कह सकते हैं कि जीडीपी में भी हमारा ग्रोथ हो रहा है ना. तो कुल मिला के फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट से हमारी जीडीपी इंक्रीज होती है. सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट. एट अ पॉइंट ऑफ टाइम प्रोड्यूसर होल्ड द स्टॉक. अच्छा, एक पॉइंट ऑफ टाइम पर जो प्रोड्यूसर है उसके पास किस किस चीज़ का स्टॉक हो सकता है. फर्स्ट द स्टॉक ऑफ फिनिश गुड, है ना. फिनिश गुड आर अनसोल्ड गुड, है ना. नेक्स्ट वन इज सेमी फिनिश गुड्स, है ना. इट मीन्स गुड विच आर इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन. एंड द थर्ड वन इज रॉ मटेरियल. सो ऑल टुगेदर द प्रोड्यूसर होल्ड द स्टॉक ऑफ ऑल थ्री थिंग्स आर कॉल्ड द इन्वेंट्री स्टॉक. ओके, this stock keeps varying over time. Change in inventory stock during the year is called inventory investment of the producer. So let's move to next topic. The next topic is the gross investment, net investment, and the concept of depreciation, of course. So first let's just start with the gross investment. The expenditure on the purchase of fixed asset as well as expenditure on the inventory stock during the year is called gross investment. Very simple. So देखिए, मैंने यहाँ पर जो वर्ड है gross investment, it's comprised of two word. First one is gross and the other one is investment, है ना. So in investment we know that investment is made up of two word. First one is fixed investment and the other one is inventory investment, ठीक है. तो वो खर्चा जो किस पे किया जाता है, फिक्स्ड असेट परचेज करने पे किया जाता है, और वो खर्चा जो इन्वेंट्री स्टॉक को इन्वेंट्री स्टॉक को परचेज करने पर किया जाता है, उन दोनों को मिला के हम ग्रॉस इन्वेस्टमेंट कहते हैं ना. अगर ग्रॉस इन्वेस्टमेंट की डेफिनेशन पूछी जाए तो आप क्या कह सकते हैं यहाँ पर, एक्सपेंडिचर ग्रॉस इन्वेस्टमेंट is equals to expenditure on the purchase of fixed asset during the accounting year plus expenditure on the inventory stock during the accounting year. Now altogether they known as the gross investment. Gross investment also include the expenditure on the purchase of new assets in place of worn out assets, है ना. तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट जो है, अब यहाँ पर थोड़ा सा हम ऐड करेंगे. ग्रॉस इन्वेस्टमेंट के अंदर इंक्लूड होता है वो खर्चे जो कि हम परचेज करते हैं न्यू असेट, तो उनके खर्चे भी इनके साथ ऐड होते हैं ना. अच्छा, मान के चलिए अगर हम न्यू असेट परचेज करेंगे तो किसकी जगह न्यू असेट परचेज करेंगे, किसी पुराने असेट की जगह न्यू असेट्स परचेज करेंगे, है ना. तो वो सारी चीज़ें भी ग्रॉस इन्वेस्टमेंट के अंदर आ सकती हैं. अगर मैं आपसे शॉर्ट में कहूँ कि ग्रॉस इन्वेस्टमेंट क्या है यहाँ पर, तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर ऑन परचेज ऑफ फिक्स्ड असेट एज वेल एज द एक्सपेंडिचर ऑन the purchase of inventory stock, that is called the gross investment. Now the replacement of fixed asset. Now talking about the replacement of fixed asset. So अगर हम रिप्लेसमेंट करते हैं फिक्स असेट की तो उनकी वजह से डेप्रिसिएशन होता है. तो रिप्लेसमेंट ऑफ फिक्स असेट ओइंग टू डेप्रिसिएशन.
एंड इट इज़ अ पार्ट ऑफ ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, और ये किसका पार्ट है, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट का पार्ट है ना. बट इट डज नॉट कॉज एनी इंक्रीज इन नेट वैल्यू ऑफ एग्जिस्टिंग स्टॉक ऑफ कैपिटल, है ना. इट ओनली मेंटेन द एग्जिस्टिंग स्टॉक ऑफ कैपिटल, ठीक है ना. तो ग्रॉस जो इन्वेस्टमेंट है ना, उसकी वजह से कभी भी एग्जिस्टिंग स्टॉक ऑफ कैपिटल की वैल्यू इंक्रीज नहीं होती है ना, बल्कि सिर्फ मेंटेन रहती है, क्योंकि हम पुराने असेट हटाकर कुछ नए असेट खरीद रहे होते हैं ना. तो इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं कि इट ओनली मेंटेन द एग्जिस्टिंग स्टॉक ऑफ कैपिटल, है ना. If the expenditure on the replacement of worn out fixed asset is excluded from gross investment, we call it net investment, है ना. अगर हमारा जो एक्सपेंडिचर है ना, रिप्लेसमेंट का एक्सपेंडिचर, कौन सा एक्सपेंडिचर, रिप्लेसमेंट का, किस चीज़ का रिप्लेसमेंट का एक्सपेंडिचर, वॉर्न आउट फिक्स असेट का, वॉर्न आउट फिक्स असेट का एक्सपेंडिचर, जिसकी वजह से क्या होता है, डेप्रिसिएशन है. तो सिंपल शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि अगर हम ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में से एक्सक्लूड करते हैं डेप्रिसिएशन को, तो हम उससे क्या कहेंगे, नेट इन्वेस्टमेंट कहेंगे, ठीक है. सो वी कैन से दैट नेट इन्वेस्टमेंट इज ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस डेप्रिसिएशन ऑफ द फिक्स असेट्स, है ना. आसान शब्दों में हम यहाँ पर ये कहना गलत नहीं होगा कि नेट इन्वेस्टमेंट इज इक्वल्स टू gross investment minus depreciation, and depreciation is also known as the expenditure on the replacement of worn out fixed assets. So let's just see some significance of net investment. Before that, let me tell you one more thing. Only net investment cause net एडिशन ऑफ स्टॉक ऑफ कैपिटल. जैसे मैंने अभी आप लोगों को पहले बताया था कि जो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट होता है ना, इट ओनली मेंटेन द एग्जिस्टिंग स्टॉक ऑफ कैपिटल, बट ऑन द अदर हैंड नेट इन्वेस्टमेंट कॉज नेट एडिशन टू द स्टॉक ऑफ कैपिटल, है ना. तो इसका मतलब है कि जो नेट इन्वेस्टमेंट है, इसकी वजह से स्टॉक ऑफ कैपिटल का एडिशन होता है, और ग्रॉस इन्वेस्टमेंट की वजह से सिर्फ जो एग्जिस्टिंग स्टॉक ऑफ कैपिटल है वो सिर्फ मेंटेन होती है, क्योंकि ग्रॉस इन्वेस्टमेंट के अंदर डेप्रिसिएशन आता है और नेट इन्वेस्टमेंट के अंदर डेप्रिसिएशन एक्सक्लूड होता है ना. अब मैं कुछ आप लोगों को सिग्निफिकेंस बताऊंगा नेट इन्वेस्टमेंट की, अगर नेट इन्वेस्टमेंट क्यों इम्पॉर्टेंट है ना. सो फर्स्ट वन, इट रेज द स्टॉक ऑफ कैपिटल इन आवर इकनॉमी, है ना. ये हमारी इकनॉमी में स्टॉक ऑफ कैपिटल को बढ़ाता है, और स्टॉक ऑफ कैपिटल के बढ़ने की वजह से अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल पर यूनिट ऑफ लेबर भी बढ़ जाती है. हायर द स्टॉक ऑफ कैपिटल इंक्रीज द अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल पर यूनिट ऑफ लेबर. मतलब ये है कि अगर स्टॉक ऑफ कैपिटल हमारा बढ़ता है तो हर लेबर के लिए एक यूनिट कैपिटल की भी बढ़ती. Second point, it help generate the opportunity of employment because unemployment in India is largely due to the lack of capital. तो अगर हम कैपिटल को बढ़ाते जाएंगे तो उससे क्या होगा कि जो अपॉर्चुनिटी है एम्प्लॉयमेंट की वो भी इंक्रीज हो जाएगी. एंड द थर्ड पॉइंट, ड्यू टू द नेट इन्वेस्टमेंट प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ द इकोनॉमी राइज, अकॉर्डिंगली द जीडीपी ग्रोथ इज़ एक्सीलेंट. अब आप खुद ही सोचिए कि अगर हमारी इकोनॉमी में जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो बढ़ती है तो उससे क्या होगा कि हायर लेवल ऑफ आउटपुट हम प्रोड्यूस कर पाएंगे, और हायर लेवल ऑफ आउटपुट को अगर हम प्रोड्यूस कर पाएंगे तो उसकी वजह से हायर रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, जिसको हम पॉपुलरली क्या कहते हैं, जीडीपी ग्रोथ कहते हैं ना. तो हमारी जो जीडीपी है उसको एक्सीलरेट करने के लिए, उसको बढ़ाने के लिए हमें क्या बढ़ाना होगा, हमारे देश में नेट इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना होगा. Let's start our next topic, that is the concept of depreciation. Fixed asset like plant and machinery are in use. They go down in value owing to normal wear and tear. Second, accidental damages beyond their routine repair and maintenance. They go down in the value also when they become obsolete or outdated due to change in technology or change in demand. Depreciation is the loss of fixed asset, है ना, in use on account of first normal wear and tear, second normal rate of accidental damages, and third expected obsolescence. So depreciation is also called the consumption of fixed capital, है ना. It is also it refers to that value of fixed asset, है ना. So
हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं कि जो फिक्स असेट्स होते हैं, हमारे जो प्लांट्स एंड मशीनरी होते हैं, है ना, उनकी जो वैल्यू कम होती है 3 बातों की वजह से, है ना। पहला, नॉर्मल वेयर एंड टेयर, मतलब कि जो हम नॉर्मली यूज़ करते हैं हमारे फिक्स असेट को, तो विद द पैसेज ऑफ टाइम, है ना, दे डिक्रीज देयर वैल्यू, है ना। सेकेंड वन, नॉर्मल रेट ऑफ एक्सीडेंशियल डैमेजेस, है ना। एक्सीडेंशियल डैमेजेस का मतलब ये है कि मतलब रिपेयर और मेंटेनेंस को छोड़कर अगर कोई और एक्सीडेंशियल डैमेजेस होता है तो उसकी वजह से भी अकस्मात हमारी फिक्स असेट की वैल्यू कम हो सकती है ना। और तीसरा हो सकता है एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस। ऑब्सोलेंस का मतलब मैं बताना चाहूँगा आप लोगों को, आउटडेटेड हो जाना, है ना। तो एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस की वजह से, तो इन सारी चीज़ों की वजह से डेप्रिसिएशन होता है। इन सारी चीज़ों की वजह से फिक्स असेट्स की जो वैल्यू है वो डिक्रीज़ हो जाती है ना। और डेप्रिसिएशन को हम इकोनॉमिक्स की भाषा में या कॉमर्स की भाषा में क्या कह सकते हैं, कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल भी कह सकते हैं, है ना। इट रेफर्स टू द वैल्यू ऑफ फिक्स असेट विच इज़ कंज्यूम्ड इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, है ना। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि फिक्स असेट की वो वैल्यू जो कंज्यूम्ड हो गई हो या यूज्ड अप हो गई हो, किसमें, प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन में, वो क्या कहलाएगी, आपकी डेप्रिसिएशन कहलाएगी, ठीक है। सो for example, if a machinery is purchased for 10 lakh rupees, है ना, and its expected lifetime of use is 10 year, then the annual provision of fund, है ना, that is 1 lakh rupees, है ना, we need, है ना, this fund is called depreciation reserve fund, है ना। Depreciation reserve fund refers to that fund which the producer keep for the replacement of इन्वेस्टमेंट और द फिक्स असेट्स। सो नाउ एक क्वेश्चन जो स्टूडेंट्स के माइंड में अराइज हो सकता है कि एक शब्द बोला था अभी मैंने कुछ देर पहले, एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस, है ना। सो देयर आर टू थिंग, एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस एंड अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस, है ना। तो बात करते हैं यहाँ पर एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस की, ठीक है। सो फर्स्ट वन, इट हैज़ 2 कंपोनेंट, है ना। तो एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस के 2 कंपोनेंट होते हैं। पहला, लॉस ऑफ वैल्यू ऑफ फिक्स असेट व्हेन दीज बिकम ऑब्सोलेट और आउटडेटेड ड्यू टू चेंज इन द टेक्नोलॉजी। तो पहला पॉइंट यहाँ पर ये है एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस का, कि जब फिक्स असेट्स की वैल्यू कम हो जाती है, किसकी वजह से, टेक्नोलॉजी के चेंज हो जाने की वजह से, है ना। तो यहाँ पर ये इसका पहला पॉइंट है ना। जैसे कि अब जब ब्लैक एंड वाइट टीवी चलती थी, है ना, और कलर टीवी का इन्वेंशन हुआ था, तो जो ब्लैक एंड वाइट टीवी थी वो आउटडेटेड हो चुकी थी, है ना, उनकी वैल्यू ख़त्म हो चुकी थी, है ना। नेक्स्ट पॉइंट, लॉस of value of fixed asset when they become obsolete or outdated owing to change in the demand, है ना। अगर किसी फिक्स असेट की वैल्यू कम हो जाए, किसकी वजह से, कि वो आउटडेटेड हो गई है। क्यों आउटडेटेड हो गई है, क्योंकि डिमांड उसकी चेंज हो चुकी है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, अ प्लांट producing a rubber shoes become obsolete when demand shift from rubber shoes to leather shoes, है ना। एक प्लांट है जो प्रोड्यूस करता है रबर के शूज़, है ना, उसकी जो डिमांड है वो ऑब्सोलेट हो जाएगी जब जो डिमांड है वो शिफ्ट होगी जब रबर शूज़ से लेदर शूज़ की तरफ, ठीक है ना। तो रबर शूज़ को ही नहीं पहनेगा उस समय, है ना। तो रबर शूज़ की जो डिमांड है वो चेंज हो रही है, तो इसको हम क्या कह सकते हैं, एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस, है ना। जो एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस है ना, उसको हम रिकवर कर सकते हैं किससे, डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड से, है ना। दूसरी तरफ क्या है हमारा, अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस, है ना। अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस मतलब लॉस इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड असेट ड्यू टू द नेचुरल कैलेमिटीज लाइक द अर्थक्वेक, फ्लड और फायर, और फॉल in the market value of assets when there is a economic recession. So loss in the value of fixed asset owing to unexpected obsolescence is called capital loss, है ना। तो इसका मतलब ये है कि जो unexpected obsolescence से जो लॉस होता है उसको हम क्या कहते हैं, कैपिटल लॉस कहते हैं, ठीक है। और इससे बचने के लिए हम इंश्योरेंस भी करवा सकते हैं, ठीक है। Our next topic is stock and flow. So capital, income, money, saving, investment, interest are widely used terms in economics. Some of these are stock concept while other are flow concept. In order to understand or distinguish between the stock and flow, let us understand their meaning. First one, the meaning of stock. A stock is a quantity measure at a particular point of time, है ना। सो मीनिंग ऑफ स्टॉक, तो मीनिंग ऑफ स्टॉक यानी कि स्टॉक का क्या मतलब है यहाँ पर, स्टॉक वो क्वांटिटी है जिसको हम मेजर करते हैं एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे, यानी कि इसका कीवर्ड क्या है, पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम,
on January, for example, on January 1st 2016 there may be 10,000 in your bank account. On January 10, 2016 there may be 15,000 in your bank account. All such values are stock values as they are measured at a specific point of time. Capital and quantity of money are notable example of stock variable. ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपको एग्जाम्पल बताया और मैंने आपको मीनिंग भी बताया था कि स्टॉक ऑफ मीनिंग ऑफ स्टॉक मैंने आपको बताया था कि इसको अगर हमें समझना है कि क्या है ये, तो इसके लिए कीवर्ड है अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, है ना। जो क्वांटिटी हम मेजर करते हैं ऐसा पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे। फॉर एग्जांपल ये उन्होंने बताया था अभी मैंने यहाँ पर कि 1 जनवरी 2016 को हमारे बैंक अकाउंट में 10,000 रुपये थे, है ना, और 10 जनवरी 2016 को हमारे बैंक अकाउंट में 15,000 रुपये थे। तो हम जब पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम की बात करते हैं किसी भी चीज़ को मेजर करने के लिए, किसी चीज़ की क्वांटिटी को मेजर करने के लिए, तो हम उसको कौन सा कॉन्सेप्ट कहते हैं? स्टॉक कॉन्सेप्ट कहते हैं, स्टॉक वेरिएबल कहते हैं, है ना। और कैपिटल, है ना, और क्वांटिटी ऑफ मनी, ये बहुत अच्छे एग्जाम्पल हैं आपके स्टॉक वेरिएबल्स के। नेक्स्ट वन इज फ्लो। अ फ्लो इज अ क्वांटिटी मेजर ओवर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। सो फ्लो का क्या मतलब है यहाँ पर? फ्लो का मतलब है कि वो क्वांटिटी जो मेजर होती है स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। अच्छा, जो हमने अभी स्टॉक की बात की थी वो पॉइंट ऑफ टाइम था और ये क्या है? स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। फॉर एग्जाम्पल, यू मे बी गेटिंग 600 per month as a pocket allowance. You may be spending 20 rupees every day in the canteen. You may be getting 8% annual interest on your bank account, है ना। All these values quantities are flow, है ना, as these are measured at per unit of time period. For example, an hour, a day, month and year, etc. Income, expenditure, production, consumption and interest are notable example of द फ्लो वेरिएबल, है ना। तो फ्लो वेरिएबल क्या है? जो स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम पर हम मेजर करते हैं, है ना। जैसे कि यहाँ पर है कि जो बैंक है ना, सेविंग अकाउंट पे मान के चलिए 3% पर एनम की इंटरेस्ट दे रहा है आपको, तो 3% पर एनम का मतलब पर ईयर। तो यहाँ पर मैंने स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम को मेंशन कर दिया पर ईयर, तो यहाँ पर ये क्या हुआ? इंटरेस्ट आपका फ्लो कॉन्सेप्ट हुआ, ठीक है। जैसे कि आपको 15 रुपीज़ मिलते हैं, है ना, डेली कैंटीन में स्पेंड करने के लिए, है ना, तो वो क्या है आपका? कि पर डे मिल रहे हैं ना आपको 15 रुपीज़, तो एवरी डे जो मिल रहे हैं आपको, तो ये पर डे हो गया, है ना। तो इसका मतलब ये कैसा कॉन्सेप्ट है आपका? फ्लो कॉन्सेप्ट, है ना। तो फ्लो कॉन्सेप्ट में हम पर आवर, पर डे, पर मंथ के बारे में हमेशा बात करते हैं। तो वो क्वांटिटी जो मेजर करते हैं स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम पर, जैसे कि पर डे, पर आवर, पर मंथ, पर ईयर, है ना। तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं? आपकी फ्लो कॉन्सेप्ट होती हैं, है ना। और इसके एग्जाम्पल जैसे कि इनकम है, एक्सपेंडिचर है ना, और प्रोडक्शन है, कंजप्शन है, इंटरेस्ट है, ये सारी चीज़ें इसके एग्जाम्पल्स हैं। फ्लो कॉन्सेप्ट और स्टॉक कॉन्सेप्ट को और समझने के लिए मैं एक आपको एग्जाम्पल देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, यू हैव डिपॉजिट 1000 पर मंथ, है ना। आप हर मंथ 10,000 रुपये अपने बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करते हैं, तो वो फ्लो कॉन्सेप्ट हो गया, ठीक है। अब आप मान के चलिए कि आपका बैंक अकाउंट 1 जनवरी 2016 को 10,000 रुपये था, है ना। बैंक सेविंग अकाउंट जो आपका था बैंक में, उसका बैलेंस 1 जनवरी 2016 को 10,000 रुपीज़ था। तो ये पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम के बारे में बात कर रहा है। तो अगर पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम के बारे में बात कर रहा है तो ये स्टॉक हुआ, है ना। और मान के चलिए कि आप 500 रुपीज़ पर मंथ विड्रॉ करते हैं, तो अगर आप 500 रुपीज़ पर मंथ विड्रॉ कर रहे हैं, पर मंथ का मतलब स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, है ना, पर मंथ, तो ये क्या मतलब हुआ इस चीज़ का? ये है आपका फ्लो कॉन्सेप्ट। तो ये क्या है? फ्लो वेरिएबल। तो आपका जो विड्रॉइंग हुई, जो ड्राइंग हुई है आपकी, वो क्या हुआ? आपका फ्लो कॉन्सेप्ट हुआ। बैंक में हमने एक पर्टिकुलर टाइम पर आपका बैलेंस बताया था, बैंक अकाउंट का बैलेंस बताया, तो वो स्टॉक कॉन्सेप्ट हुआ। और पर मंथ जो हम डिपॉजिट कर रहे थे वो कौन सा कॉन्सेप्ट हुआ? फ्लो कॉन्सेप्ट हुआ, ठीक है। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ फोर्थ सेक्टर ऑफ आवर इकोनॉमी, है ना। सो हमें पता है कि हमारी जो इकोनॉमी है वो 4 सेक्टर में डिवाइड है। पहला सेक्टर है आपका हाउस होल्ड सेक्टर, दूसरा सेक्टर है प्रोड्यूसर सेक्टर, तीसरा सेक्टर है गवर्नमेंट सेक्टर और फोर्थ सेक्टर है आपका एक्सटर्नल सेक्टर, है ना। हाउस होल्ड सेक्टर, इट इंक्लूड द कंज्यूमर ऑफ goods and capital. Household are also known as the owner of the factor of production, ठीक है ना। तो हाउस होल्ड सेक्टर कौन सा सेक्टर है? जिसमें कंज्यूमर गुड्स और सर्विस के इंक्लूड होते हैं, है ना। हाउस होल्ड को क्या कहा जाता है? ओनर कहा जाता है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का।
दूसरी तरफ प्रोड्यूसर सेक्टर है ना, इट इंक्लूड ऑल producing unit producing unit in the economy. For the production of goods and service, the firms hire or purchase the factor of production, that is the labor, द लैंड, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर स्किल, है ना, फ्रॉम द हाउस होल्ड. तो दूसरा सेक्टर कौन सा है आपका? प्रोड्यूसर सेक्टर है. तो प्रोड्यूसर सेक्टर के अंदर क्या आता है? हमारी इकोनॉमी में जितनी भी प्रोड्यूसिंग यूनिट हैं वो सारी प्रोडक्शन प्रोड्यूसर सेक्टर के अंदर आती हैं. और प्रोड्यूसर सेक्टर का क्या काम होता है? प्रोड्यूसर सेक्टर प्रोडक्शन करता है गुड्स एंड सर्विस का. कैसे करता है ये प्रोडक्शन? ये हायर करता है या परचेज करता है किसको? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को, है ना. लेबर हायर करता है ना, लैंड के लिए पे करता है रेंट, है ना, और एंटरप्रेन्योर स्किल्स को भी ये हायर करता है ना, और लैंड को परचेज भी कर सकता है. तो ये सारी चीज़ें ये कहाँ से करता है? फ्रॉम द हाउस होल्ड, है ना. द थर्ड सेक्टर इज द गवर्नमेंट सेक्टर. इट इंक्लूड द गवर्नमेंट एज अ वेलफेयर एजेंसी. सेकेंड, गवर्नमेंट एज अ प्रोड्यूसर. सो गवर्नमेंट एज अ वेलफेयर एजेंसी परफॉर्म्स वेलफेयर फंक्शन एज ऑफ लॉ एंड ऑर्डर एंड डिफेंस, है ना. तो अगर ये वेलफेयर एजेंसी है तो कैसे फंक्शन परफॉर्म करेगी? लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करेगी, है ना, और इस प्रकार के, और डिफेंस के मेंटेनेंस के लिए भी पैसा चाहिए, है ना, और प्रोडक्शन कराना है तो प्रोडक्शन के लिए भी पैसा चाहिए गवर्नमेंट को. तो ये तीसरा सेक्टर कौन सा है हमारा? गवर्नमेंट सेक्टर. Fourth one is external sector. External means also called the rest of the world sector. It include all such activities which are related to the import and export of good, है ना. इसके अंदर सभी एक्टिविटी जो इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट गुड्स के इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट से रिलेटेड होती हैं वो सभी एक्टिविटी इसी के अंदर आती हैं. द फ्लो ऑफ कैपिटल बिटवीन द डोमेस्टिक इकनॉमी एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. मतलब हमारे देश के बीच में, हमारी जो देश की इकनॉमी, जो टेरिटरी है, द इकोनॉमिक टेरिटरी ऑफ आवर कंट्री, है ना, उसका और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड का, इन दोनों का जो ट्रांजैक्शन है आपस में, उसको हम कौन सा सेक्टर कहते हैं बच्चों? एक्सटर्नल सेक्टर. ईच सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी डिपेंड ऑन द another sector in one way or the other. This is called the intersectorial independence. ठीक है. To understand the intersectorial dependence, है ना, we have two flow. The first one is the real flow and the other one is the money flow, है ना. It is said that money flow is a reciprocal of real flow. So let's start our topic with the real flow. So real flow refers to the flow of goods and service among the different sector of the economy, है ना. On the other hand, money flow refers to the flow of money across the different sector of the economy. Flow of factor of services from household sector to the producer sector, or the flow of goods and services from the producer sector to the household sector are the example of real flow. And on the other hand, flow of payment, flow of factor payment by the producer sector to the household sector, and the flow of money from the household sector to the producer sector, and are the example of money flow, है ना. सो जैसे मैंने आपको बताया रियल फ्लो, है ना. तो रियल फ्लो में दो प्रकार के सेक्टर हमें देखने को मिलते हैं. पहला सेक्टर है आपका हाउस होल्ड सेक्टर और दूसरा है आपका प्रोड्यूसर सेक्टर, है ना. हाउस होल्ड सेक्टर और प्रोड्यूसर सेक्टर ये दोनों ही एक दूसरे पर डिपेंड है ना. तो इसीलिए इसको इंटरसेक्टोरियल फ्लो भी हम कह सकते हैं, लेकिन बात हम यहाँ पर रियल फ्लो की कर रहे हैं. तो जो हाउस होल्ड है वो प्रोड्यूसर सेक्टर पे डिपेंड है और प्रोड्यूसर सेक्टर हाउस होल्ड सेक्टर पे डिपेंड है ना. सो द प्रोड्यूसर सेक्टर एक्वायर द फैक्टर सर्विसेज फ्रॉम द हाउस होल्ड, है ना. तो क्या है यहाँ पे जो प्रोड्यूसर सेक्टर है वो फैक्टर सर्विसेज लेता है. किससे फैक्टर सर्विसेज लेता है? हाउस होल्ड सेक्टर से, जैसे कि लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप की, है ना. जो कि कौन देता है यहाँ पर? हाउस होल्ड देता है. किसको? प्रोड्यूसर सेक्टर को, है ना. उसके बदले में प्रोड्यूसर सेक्टर क्या देता है? गुड्स देता है. किसको? हाउस होल्ड सेक्टर को, है ना. यानी कि हम ये कह सकते हैं कि गुड प्रोड्यूस्ड एंड सोल्ड बाय द फर्म और द प्रोड्यूसर सेक्टर टू द हाउस होल्ड सेक्टर. तो दैट इज द रियल फ्लो.